Assalamualaikum everyone. My name is Kasir Sharif and we are going to start a chapter that is types of noun. आपने सुना होगा there are different types of noun, लेकिन जो most common है वो 5 types के बारे में discuss होता है. So we are going to start a chapter here that is about 10 kinds of noun. इससे पहले हमने एक lecture record किया था that the lecture was especially about the parts of speech. और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पहली स्पीच है जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करने लगे हैं और हमने ये प्रीवियसली भी डिस्कस किया था. एंड नाउ आवर चैप्टर स्टार्ट्स हियर एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से यू दैट सब्सक्राइब माई चैनल, इट इज़ ऑन योर स्क्रीन. और सब्सक्राइब करें और यू शुड ऑल्सो हिट द बेल बटन ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें. ओके, let's start. The first word is proper noun. As you can see, proper noun, by the word, proper nouns are used to refer to specific persons, place or things. A proper noun always starts with a capital letter. These nouns are also refer to the names of the days of a week, of weeks, months, also various names. इसको आसान लफ्ज़ों में अगर एक्सप्लेन किया जाए कि what is proper noun. Proper noun means a noun which has no plural. एक तो इसकी जमा नहीं बन सकती, very first. Second, ये हमेशा कैपिटल अल्फाज में आएगा. इसका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा that will be always cap in the cap and it will be capital. And we never use any articles विद प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे जैसा कि ए, एन, द. हम कभी भी ये आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं स्पेशली विद द प्रॉपर नाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ये यूज़ कर रहा है द K2, it means this is wrong. Why? Because this is a specific name. इसको आसान लफ्ज़ में डिफ़ाइन करने का यही तरीका है कि you can understand in this way. Proper noun has no plural. अगर आप किसी टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हैं, if you go to a taxi driver and you say to a taxi driver, let's go to university, तो टैक्सी ड्राइवर आपसे लाजमी क्वेश्चन करेगा विच यूनिवर्सिटी, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी. तो आपको कोई स्पेसिफिक नेम बताना पड़ेगा एंड दिस इज़ कॉल्ड proper noun. Okay, now our second task is about common nouns. What are common nouns? Common nouns refer to general, unspecific persons, place or things. For example, if we have a name boys, it means इसको आसान words में ये कहा जा सकता है कि common nouns means जिसकी plural बन सकती है. The words which have plural, ऐसे नाम जो plural हों. For example, cats, dog, dogs, chair, chairs, girls. Same thing here. The difference between common noun and proper noun is very simple here. Common noun means common name. Proper noun means specific name, खास नाम. For example, we watch cartoons. So cartoons, this is common noun. It means this word has plural S word. Now let's go to our next one chapter. Let's start the third one, which is compound noun. Compound nouns. A compound noun is a noun which contains two or more words which join together to make a single noun is called a compound noun. A compound noun can be written together such as football, can be hyphenated such as six pack, mother-in-law, or separate words such as post office, classroom, paperclip. इसको आसान वर्ड्स में ये कहा जा सकता है कंपाउंड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. कंपाउंड, ओके, सच एज दो वर्ड हों जो दोनों नाउन होने चाहिए. फॉर एग्जांपल वी से हाउस वाइफ, दिस इज़ फुटबॉल जो कि सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ कंपाउंड नाउन. होप यू अंडरस्टैंड दैट. लेट्स स्टार्ट नंबर 4. What is number 4? This is collective nouns. A collective noun is a noun which refers to a group of people, a group of something in a specific manner or unit. Family. Family से मुराद है, इसको आसान वर्ड्स में इस तरह लेके जा सकते हैं. Collective noun means you collect many things, बहुत सारी चीज़ों को मिला दें लेकिन नाम एक दे दें. For example, family. तो इसके
मेंबर्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमने एक नाम दे दिया. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई इनवाइट करता है, इफ़ समवन इनवाइट्स यू टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, वो आपसे कहता है कि आप अपने मदर को, फादर को, सिस्टर को, ब्रदर को, सबको शादी में लेकर आइएगा, या जो भी उसने पार्टी में आपको इनविटेशन दिया है उसमें आप उनको लेकर आइएगा. इतने सारे नामों की जगह वो एक ही कलेक्टिव करके नाम यूज़ करेगा, दैट इज़ फैमिली. इसी तरह वर्ड ऑडियंस है, इसका मतलब भी आवाम मीन्स बहुत ज़्यादा. ऑडियंस, हम ऑडियंसेस नहीं कह सकते. इफ़ वी टॉक अबाउट फैमिलीज़, अगर हमने फैमिलीज़ कह दिया तो एस लग गया, तो दैट मीन्स दिस इज़ कॉमन नाउन. लेकिन जहाँ पे फैमिली, फॉर एग्जाम्पल एयरफोर्स, फॉर एग्जाम्पल एयरफोर्स, द पीपल डज नॉट साउंड वेल हेयर, हम उसकी जगह, पीपल की जगह क्राउड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. दैट सीम्स मच बेटर, ये थोड़ा अच्छा लगता है और ये भी सूट करेगा. आर्मी, ये भी हमें यहाँ पे सूट कर रहा है. दैन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट एयरफोर्स. So these all words are called collective nouns, means collect many things and give one name. So this is called collective noun. Hope you understand here. Concrete nouns. Number 5 is concrete noun. A concrete noun is a noun that can be touched, smelled, seen, felt or tasted. Means ऐसे अल्फाज जो आप छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, देख भी सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेट, चेयर, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है कॉमन नाउन से, लेकिन इसके लिए कोई कंक्रीट सॉलिड चीज़ लाजमी है जिसको आप हाथ भी लगा सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, स्पेशली स्मेल कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, जिस तरह प्लेट, चेयर, वाटर, कंप्यूटर, टेबल. इसी तरह नंबर 6 पे आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट नंबर 6. नंबर 6 we have a word that is abstract noun. Abstract nouns are the names of things that you can perceive or recognize with your 5 senses. Means इसका मतलब है कि आप इसको फील कर सकते हैं, सिर्फ हाथ नहीं लगा सकते. यू कॉन्ट टच ऐसे अल्फाज विच यू कॉन्ट टच. फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन आपको नज़र नहीं आता, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते. सो लव, फ्रीडम, हैप्पीनेस. इसी तरह जो वर्ड जिसके आखिर में नेस का वर्ड आता है, नेस, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. जिस तरह फॉर एग्जांपल लोनलीनेस, शार्पनेस. शार्पनेस मीन्स तेज़ी, सो यू कांट सी, यू कांट टच, यू ओनली फील. अब परसेप्शन जनरेट करते हैं वहाँ पे अपना. नंबर 7 इज़ मटेरियल नाउन्स. व्हाट इज़ मटेरियल नाउन? सो मटेरियल nouns refer to material or substance out of which things are made, such as gold, silver, iron. ये ज़्यादातर रेफ़र करेगा, मटेरियल का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो नेचुरली आपको मिलती हो और उससे आप नई चीज़ें बनाते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट चेयर, सो चेयर इज़ अ कॉमन नाउन, इट कैन बी कंक्रीट नाउन ऑल्सो. लेकिन इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है जो नेचुरल तौर पर हमें मिला? दैट इज़ वुड. सो वुड इज़ मटेरियल नाउन. इसी तरह हम जेवरात बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी. सो उसमें जो हमें मटेरियल यूज़ किया गया दैट इज़ गोल्ड, जो कि नेचुरल सब्सटेंस है. एंड सेम थिंग आयरन, लोहा, एंड वी कैन टॉक अबाउट पेट्रोल. इट कैन बी, बिकॉज प्लास्टिक की जितनी चीज़ें हैं उसमें जो लिक्विड यूज़, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है दैट इज़ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी. Okay, now we are going to discuss about pronoun. Pronoun एक अलग से part of speech है, लेकिन कभी कभार ये as a noun act करता है. For example, personal pronouns are types of nouns that take the place of nouns which are referring to people, places or things were called. For example, pronouns I, she, he. For example, इसको अगर आप सेंटेंस बनाना चाहें तो you can understand कि किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है. अगर हम यहाँ एग्जाम्पल बनाते हैं, so we can say Shazia is coming my home and she is upset.
यहाँ पे जो वर्ड हमें शी का दिया गया, दैट वर्ड इज एक्चुअली रेफरिंग टू प्रोनाउन, और वो प्रोनाउन कौन सा कहलाएगा? अ टाइप ऑफ नाउन विच इज़ पर्सनल। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ अबाउट काउंटेबल नाउन्स, विच इज़ नंबर 9. Countable nouns are the nouns that can be counted. These nouns can be used in both the singular and plural forms. When used as a plural forms, they can be counted. For example, friends means SL first जो countable हो. For example, it is a branch of a common noun which is countable. For example, we say that she had a pet dog. Dogs you can count. Dog is also a countable noun. Plate, chairs. The word which has a noun which has S or ES means countable category. For example, books you can count, तो ये countable nouns कहलाएंगे. As number 10, now let's go to number 10, which is uncountable nouns. Uncountable nouns are the nouns that cannot be counted and have only singular forms, such as you cannot count water, rice, sugar. Sometimes they act as, for example, any liquid material, it cannot be counted. If I say rice, you cannot count. For example, sugar, you cannot count. So these are called uncountable nouns. Thank you very much for listening. Hope you understood it. मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया होगा. If you want to ask any question related to this thing, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं.